Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Miss Roxana, chemistry subject teachers. I have explained the chapter 10 in my previous last lecture. The chapter is chemical energetics. The things which we have studied about the exothermic and endothermic reaction. Heat is heat of reactions, measurement of heat of reactions, heat of neutralization. What is the now the you write the questions. First question is define the thermochemistry. What is the thermochemistry? The answer is the branch of chemistry which deals with the study of heat changes in chemical the first question is define the thermochemistry, or what is the thermochemistry? The branch of chemistry which deals with the study of heat changes in chemical reaction is called thermochemistry. There are two types of thermochemical reactions: exothermic reaction and endothermic reactions. And define the exothermic reaction and endothermic reactions. The answer is an exothermic reaction is the chemical change during which heat is given out or released. The change of heat is represented by delta H and it is shown by negative sign. The example of is the the combustion of coal in air is an example of exothermic reaction. 393.7 kilojoules of the heat energy is released when 1 mole of coal is burned in 1 mole of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide. Here is the equation. When carbon burns with oxygen, the carbon dioxide gas is produced and also the energy is released is minus 393.7 kilojoules per mole. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या है. थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो उन रिएक्शंस के बारे में है कि जिसमें एनर्जी जो है या जो है वो चेंजेस होती है. हीट एनर्जी जो होती है रिएक्शंस हैं इन केमिकल रिएक्शंस, और इसके नतीजे में हीट या तो यूज़ हो रही होती है या फिर वो रिलीज़ हो रही होती है. तो इसी बेस पे कि हीट के यूज़ होने पर या एनर्जी के यूज़ होने पर और एनर्जी के रिलीज़ होने पर जो है केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो है क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है. ऑल द कंबस्शन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि कंबक्शन या बर्निंग रिएक्शन जो होते हैं उसमें जो है एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. जिस तरह कोयला जो है उसको जब हवा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और उसके नतीजे में जो है 393.7 किलोजूल्स पर मोल जो है एनर्जी जो रिलीज़ होती है. अब ये एनर्जी जो होती है मुख्तलिफ कंपाउंड के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ होती है. अब यहाँ देख सकते हैं कि जो ये सेकंड एग्जांपल्स है मीथेन, इसमें भी जो है कितनी है, -890 है. और इसी तरह जो है वाटर जो है उसके बनने में भी जो एनर्जी बन रही है वो कितनी है, -286. यानी एनर्जी लेवल जो है वो हर एक का डिफरेंट होता है. आप यहाँ इन तीनों एग्जाम्पल्स हैं उसमें से कोई भी एग्जाम्पल्स जो है वो आप लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड इज endothermic reaction. What is endothermic reaction? Endothermic reaction is the chemical change during which heat is absorbed or taken in. The change of heat energy is represented by delta H, and sign of delta H is positive, is equal to absorbed heat. During the endothermic reaction, heat is absorbed from the surrounding. It means heat flow from the surroundings to the system and container becomes cold. This is because the total energy of the products is greater than the total energy of reactant.
Here is a difference in the energies in the heat supplied to the system by the surroundings, and the example is the decomposition of water. The decomposition of water in hydrogen and oxygen is an example of endothermic reaction during decomposition of 1 mole of water to 1 mole of hydrogen and half mole oxygen. 286 kilojoules per mole of heat energy is absorbed. Here you can see the decomposition in water. The hydrogen gas is produced and oxygen gas is produced, and the energy is जो यूज़ हो रही है वो 286 किलो जूल्स पर मोल है. इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसकी एग्जांपल है. तो यहाँ 2-3 एग्जांपल हैं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है, यूज़ हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है. और एनर्जी जो है इसमें जो एब्जॉर्ब एनर्जी है, हीट होती है, उसको जो है हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, जिस तरह एक्सोथर्मिक को हम नेगेटिव साइन से करते हैं. इसमें जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जो होती है प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसके नतीजे में अगर वो कंटेनर जिसमें वो रिएक्शंस हो रहा होता है वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है. और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि वो हीट जो होती है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर होती है. किसके मुकाबले में? रिएक्टेंट के मुकाबले में जो है एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट्स जो होती है वो ज़्यादा होती है. और यहाँ पे जो है ये एग्जांपल दी हुई गई है. यहाँ पे कि वाटर की डिकम्पोजिशन की एग्जांपल है. इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड की एग्जांपल है कि इस तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिस वक्त बनते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो उसमें भी जो हीट यूज़ हो रही होती है वो 90.25 किलो जूल्स पर मोल है. तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स में जो है एनर्जी लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है. इसके बाद है क्वेश्चन होगा डिफाइन द एंथैल्पी एंड हीट कंटेंट्स ऑफ द रिएक्शंस. एंथैल्पी क्या होता है कि every substance possess a characteristic in internal energy, and internal energy depend upon the structure and physical states of that substance. This internal energy is called as heat enthalpy. Called as enthalpy. The energy possessed by a substance is called heat contents of that substance, और उसको मतलब हीट कंटेंट भी कह सकते हैं और इसे हम एंथैल्पी भी कहते हैं. ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड हीट एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और एवॉल्व. अब हीट कंटेंट यानी हर सब्सटेंस में क्या है कि उसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी होती है हर सब्सटेंस की, उसके स्ट्रक्चर और फिजिकल स्टेट की वजह से. तो उसे हम जो है वो जो जितनी मौजूद होती है उसे हीट कंटेंट्स को जो हम एंथैल्पी कहते हैं. द हीट कंटेंट एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय H, and the change in heat content during a chemical reaction is that represented by delta H. Here you see जो है चेंज ऑफ एंथैल्पी या हीट का जो है वो क्या है, डेल्टा H H2 माइनस H1 हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट. यानी का जो रिएक्टेंट जो होती है उसकी एनर्जी को जो है हम माइनस कर देते हैं. हीट जो प्रोडक्ट्स की हीट होती है तो वो जो कहलाता है, जो डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान वो कहलाता है चेंज ऑफ हीट एंथैल्पी. नाउ द क्वेश्चन इज 3 इज measurement of heat about the measurement of the heat reactions of any. Define the measure what is question is what is measurement heat of reactions. The heat absorbed or evolved during thermochemical reaction is called heat of reaction.
Exothermic and isothermic can easily be detected by touching the vessel before after chemical reaction. The increase in temperature indicates that reaction is exothermic and decrease in temperature indicate that reaction is exothermic. The accurate value of can be determined by using calorimeter. The next question is define the heat of neutralization, or what is the heat of neutralization. The reaction between an acid and base to form a salt and water is called neutralization reaction. Neutralization reaction is the example of exothermic reaction. The amount of heat released when 1 mole of hydrogen ions from an acid react with 1 mole of hydroxide ion from base to form salt and 1 mole of water is called heat of neutralization. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि वो एसिड और बेस को जब हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में जो है सॉल्ट और वाटर बनता है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है एसिड का और हाइड्रो ऑक्साइड 1 मोल ऑफ OH आइंस या हाइड्रो ऑक्साइड आइंस जो है बेस के मिलके जो है 1 मोल ऑफ वाटर बनाते हैं और जिसके नतीजे में जो हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ यूज़ हो रही थी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड all the chapters of chemistry book, 9 chemistry book. We have explained the question answer also, and question answer completed from all the chapters. I have given the brief explanation of all the chapter from chapter number 1 to chapter 10, which you will revise we'll revise all the chapters. Now chapters number 1 was the introduction to chemistry. What we learned in introduction chemistry: what is chemistry, its definition and importance, and also is the history of chemistry, or role of chemistry in the society, branches of chemistry and the scientific approach in chemistry. हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो क्या थी कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, composition and structure of matter. Chemistry also deals with the changes involved in the matter. It is also deals with the principle governing the changes which matter may go. यानी हमने इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है वो मैटर की जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी कंपोजिशन है और उस लॉज एंड वो प्रिंसिपल्स हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ जो है एटम्स में और उसके चेंजेस ऑफ केमिकल्स कंपाउंड्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद जो है हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, जो ग्रीक हिस्ट्री पढ़ी। इसके बाद मुस्लिम पीरियड्स बना, उसमें जो है जो साइंटिस्ट थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, जिस तरह जाबिर बिन हय्यान, अल राज़ी, अल बैरूनी और इब्न सीना के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें इन्वेंटेड की। इसके अलावा हमने मॉडर्न पीरियड पढ़ा जिसमें नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट का जो है पार्टिसिपेशन थी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। और इसके अलावा जो है हमने केमिस्ट्री का जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी कि उसमें हमारी रोज़मर्रा लाइफ में जो है केमिस्ट्री का किस तरह जो है इम्पॉर्टेंट रोल है, जिस तरह केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ग्लास, कॉस्मेटिक्स, सोप, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, ये तमाम के तमाम एग्जाम्पल जो है। और ये PVC पाइप जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं वो उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जो 8 ब्रांचेस थी: पॉलीफिजिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर पॉलीकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इनकी डेफिनेशन जिसमें पढ़ी है कि ये तमाम ब्रांचेस हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन जो है
प्रोवाइड करती हैं और किस तरह यूज़फुल हैं। इसके अलावा जो है हमने ही पढ़ा था द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, यानी हम किसी प्रॉब्लम्स को, किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी बेसिस थी ऑब्जर्वेशन, हिपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक। इन पॉइंट्स की बेस पर जो है हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाए गए थे, अब जहाँ इसमें ये पढ़ा था ना, नेक्स्ट चैप्टर जो था वो केमिकल कॉम्बिनेशन के हवाले से था, जिसमें हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, एटॉमिक मास, केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, एवोगाड्रो नंबर, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंजेस, और इसके अलावा हमने जो है केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। यहाँ लॉ ऑफ मुख्तलिफ लॉ से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ा था, जो ये हमें बताता है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन नाइदर इन केमिकल द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स, और इट इज़ द लॉ in which no matter is neither created nor produced nor destroyed. Or here is the example to prove the law of conservation, which is called as the Landolt experiment. In Landolt experiment, he took the H-shaped apparatus. In first arm he took the silver nitrate, in other arm he took the HCl and mixed. He weighed before the reactant of before the reaction and after the mixing, and products weighed he measured the weight of products, and he find that the weight before the reactant and after the reaction was the equal. The second law which we learn about the law of definite proportion, इसमें ये बताया था कि हर जब हम केमिकल्स कंपाउंड होते हैं उनमें जो है जो वेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू मास। मतलब अगर ये H2 है, इसका 2:16 जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 2 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो है 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन 1 है तो 16 होगा। तो इन दोनों को जब हम रिएक्शन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो बनेगा तो उसका वेट भी हमेशा जो वो होगा, रेशो जो होगा 1:8 का होगा, चाहे वो पानी जो है हमने कहीं से भी हासिल किया हो, रिवर हो, रेन हो या वाटर वेल से हासिल किया हो, तो जब भी पानी बनेगा तो इसी रेशो से बनेगा। इसी तरह तीसरा ये जो लॉ था, ये जो है जो लुईस ब्राउस ने ये जो है लॉ किया था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन वन जो था वो लेवोजियर ने बनाया था। और ये थर्ड लॉ जो है ये डाल्टन्स लॉ है, जिसने ये बताया था कि जो लॉ जो है अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ, एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ होता है तो वो मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से होता है, यानी फिक्स मास, द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशो। कार्बन when combine oxygen ratio is 1, carbon dioxide is 1:2. Law of reciprocal proportion, उसके मुताबिक जो है जो था, जितना इसने ही बताया था, ये लॉ जो है रिचर्ड्स का लॉ है, और इसने ही बताया था कि it is said that when two different elements separately combine with the fixed mass of third element, the proportion in which they combine with another shall be either in the same ratio or some simple multiple of it. You can see the triangle है यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फ़र का। तो ऑक्सीजन जब सल्फ़र के साथ हुआ तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है उसमें 1:1 की से हुआ था, दोनों में 8:8 है। और इसी तरह यहाँ पे जब ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हुआ कार्बन के साथ, तो भी यहाँ पे 12:32 यानी 3:8 के रेशियो से हुआ। और इसी तरह जब सल्फ़र जो है कार्बन के साथ कंबाइन होता है तो 3:16 यानी उसके मल्टीपल के हिसाब से जो है, यानी जो 8 का मल्टीपल है
उसके हिसाब से ये कंबाइन हुआ जब थर्ड एलिमेंट के साथ हुआ है। तो ये मुख्तलिफ लॉज हमने पढ़े थे। इसी तरह या मुख्तलिफ जो है हमने फार्मूलाज पढ़े थे, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पढ़ा। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और एटॉमिक मास क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज़ नाउ टेकन एज द एवरेज मास ऑफ द नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप विच इज़ कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। यानी कार्बन से जो है कंपेयर करके किया है कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है? 12 है। इसे हमने स्टैंडर्ड ले लिया है। तो इसके हिसाब से जो है ऑक्सीजन का 16 और सल्फ़र का जो है वो 32 एटॉमिक मास है। यानी एटॉमिक मास जो है वैसे तो मास ऑफ जो है जो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उसके हिसाब से जो लिया जाता है वो एटॉमिक मास कहलाता है। और स्टैंडर्ड एटॉमिक मास जो लिया गया है वो कार्बन का है जो 12 एटॉमिक मास है। इसी तरह एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल फार्मूला है। जिस तरह यहाँ पे बेंजीन का फार्मूला C6H6 है, तो जब हम एम्पेरिकल फार्मूला लेंगे तो वो रेशो के हिसाब से लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? वो रेशो शो करता है। एम्पेरिकल फार्मूला टेल अस विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड देयर सिंपल एटॉमिक रेशो बट नॉट नेसेसरी द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक के लिए मतलब सबके लिए वो हो, क्योंकि जिस तरह वाटर है तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, दोनों का 1:2 होता है, यहाँ बता दी। लेकिन ये जिस तरह ये है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों 6 हैं, तो जिनका रेशो बनेगा वो क्या होगा? 1:1 का होगा। इसी तरह ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। तो इसका जब हम एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो लेंगे तो क्या होगा? वो हो जाएगा, क्योंकि CH2O यानी 6 को अगर आप तीनों से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ फिर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH2। तो उमन जो है एम्पेरिकल जो फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला से, लेकिन ये तमाम के साथ नहीं होता, इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ या आप है ना वाटर का देखें तो उनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। मैथमेटिकली हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इस तरीके से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट और एम्पेरिकल फार्मूला वेट डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या कहलाता है? जिससे हम डिवाइड करेंगे वो कहलाता है नंबर, जो नंबर से निकलेंगे इन दोनों को डिवाइड करने से, जिससे हम इसे डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो है उसमें जो है तमाम जो है उनको हम कंबाइन कर देते हैं। तो वो किस तरीके से? मॉलिक्यूल के जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का कितना मॉलिक्यूलर मास या वेट है, मास है 12 है, और ऑक्सीजन का कितना है? 32। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 44। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? 44। यानी मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास वो होता है जिसमें उनको जो है तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं, एक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। ये इसमें इस तरह बताया था। और इसके बाद मोल या मोलर मास क्या होता है? जब हम इस मास को ग्राम में शो करते हैं तो वो मोलर मास कहलाता है। जिस तरह अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 17 है, और अगर हम इसको G लिख दें और यानी ग्राम में लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये 17 ग्राम क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। अब इसमें एवोगाड्रो नंबर क्या था? एवोगाड्रो नंबर जो है उसकी फिक्स वैल्यू है हर एटम में, ये इतने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पार्टिकल्स, यानी 1 मोल कार्बन में भी इतने ही होंगे। यानी 1 मोल कार्बन किसके बराबर है? 12 ग्राम। और 12 ग्राम जो कार्बन होगा उसमें इसकी जो वैल्यू होगी एवोगाड्रो नंबर की वो क्या होगी? सेम होगी। इसी तरह मैग्नीशियम का जो है 1 मोल मैग्नीशियम में कितना वेट है? 24 ग्राम्स। तो इसका जो है वेट वो जो होगा एटॉमिक नंबर जो एवोगाड्रो नंबर होगा, आप देख रहे हैं उन सबका सेम एवोगाड्रो नंबर होगा, चाहे वो एटम साइंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो फार्मूला यूनिट्स हो। तो ये इससे रिलेटेड यहाँ हमने कुछ वो भी किए थे सम वगैरह।
और इसके बाद जो है केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या है, जिसमें कंपाउंड्स जो होता है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। एनी चेंज विच ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज केमिकल चेंज। इन दिस टाइप ऑफ चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो उस बेसिस पे जो है केमिकल रिएक्शंस की हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द थर्ड चैप्टर्स वाज अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हमने मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि अब रिड्यूस जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ कैथोड यानी इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पढ़ा था, रेडिएटिविटी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, आइसोटोप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब इस में जो है आपको ज़्यादातर जो पढ़ना है वो आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, बोहर्स थ्योरी पढ़ना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और ये आइसोटोप और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को पढ़ना है। रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। आज एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली क्या थी, एटॉमिक थ्योरी जो है वो ये बताती है कि जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट या सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम्स। जो ग्रीक ने है जो पहले इसको एटम्स को डिस्कवर किया था कि सबसे स्मॉलेस्ट और इंडिवाइजेबल है। डाल्टन्स ने जो है इस थ्योरी को आगे बढ़ाया था और उसने कहा था कि एक ही एलिमेंट्स के तमाम एटम जो है वो सेम होते हैं, साइज़ में और मास में सेम होते हैं, प्रॉपर्टी में, लेकिन जब एक एलिमेंट्स के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं और जब ये एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाता है या कंपाउंड बनाता है तो उनका एक फिक्स रेशो होता है और इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो केमिकल रिएक्शन में वो सेम होती है, लेकिन वो जो है एटम्स जो है वो नाइदर क्रिएटेड नॉन डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बताया था। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने ये बताया डिस्कवरी के बाद, मुख्तलिफ थ्योरी से पता चला कि एटम जो है वो इंडिवाइजेबल है, यानी उसके सब पार्टिकल्स भी हैं। पहले कहा जाता था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये इंडिवाइजेबल है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने ये बताया कि ये जो है एटम जो है डिवाइजेबल है। इसके मज़ीद फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिन्हें उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जिसमें उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसी में जो है वो जिसे कैथोड रेस को भी कहा जाता है, और उसे उसने बताया कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब इसके बाद जो है प्रोटॉन, इसके बाद जो है कैथोड गोल्डस्टीन जो है उसने फिर जब ये सोचा कि जब अगर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो यकीनन उसके अगेंस्ट पॉजिटिव भी होगा, तो उसने पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन को डिस्कवर किया। और जेम्स चैडविक ने जो है वो थर्ड पार्टिकल्स न्यूट्रॉन डिस्कवर किया गया, जिसके बाद जो है इनका जो है एटॉमिक चार्जेस और वेट और वगैरह मालूम किया गया। रेडियो एक्टिविटी जो है ये जो है इसको जो डिस्कवर किया हेनरी बेनक्वेरेल ने किया था, जो फ्रेंच फिजिशियन था। इसके कहने के मुताबिक जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट जो है वो 80 से ज़्यादा होता है वो खुद ब खुद जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं और उनसे रेस प्रोड्यूस होती है, जिसे उसने कहा था रेडिएशन का नाम दिया उसने, रेडिएशन प्रोड्यूस कहा कि ये उस प्रोसेस को उसने कहा कि ये रेडियो एक्टिविटी है कि जिस तरह प्लेटिनम वगैरह जो हैं, रेडियम, प्लेटिनम, इनका एटॉमिक मासेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये खुद ब खुद जो होते हैं टूट जाते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इनविजिबल रेडिएशन आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, जिसको उसने कहा कि रेडिएशन है। अच्छा, इसमें जो है इस प्रोसेस को भी उसने एक्सपेरिमेंट किया और इसके ज़रिए उसने बताया कि जो रेस निकलती हैं इस एक्सपेरिमेंट में तो वो
तीन तरह की रेज होती हैं। जो एक जो नेगेटिव रेज पॉजिटिव की तरफ गई उसने उसका नाम जो है बीटा रेज रखा, और जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गई उसका नाम उसने बीटा रखा, और जो रेज जो थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ी उसका नाम उसने अल्फा रेज रखा, और जो बीच की रेज थी जो ना नेगेटिव की तरफ गई ना पॉजिटिव की तरफ उसका नाम उसने जो है वो गामा रेज का उसने नाम दिया। यानी तीन रेस मालूम की। रदरफोर्ड ने जो है फिर वो रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड जो थी मेटल फॉइल यूज़ की, और उसमें जो है उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और उसने बताया इसके ज़रिए कि वो सेंट्रल कंडेंस पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, और जो रेस सीधे सीधे जा रही थी तो उसने कहा इतना हिस्सा जो है उसका खाली है, और इसने ये बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके नेगेटिव पार्ट में बीच में रहते हैं, और न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव है।